और ये लेटर पी है। चलो ठीक है बेटा। आवाज आ रही है वीडियो की? स्वेच्छा? नो सर। नो सर। क्या आवाज आ रही है? नो सर। ये क्या हो गया, आवाज आनी चाहिए थी। नो सर। ठीक है अब आवाज में फिर से साउंड सेटअप करना पड़ेगा। Have you ever wondered how aerated drink bottles contain liquids under such great pressure? To know more about this, we need to go back to the year 1803, when an English chemist, William Henry, proposed a remarkable theory. हेनरी ला मैंने पढ़ा दिया था। The theory suggested a quantitative relation आप लोग के रिवीजन pressure पर्पस से ये and solubility लगाए। of a gas in a solvent. This came to be known as Henry's law. Henry's law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. So, if m is the mass of the gas dissolved and p is the pressure of the gas at equilibrium with the solution, then m is directly proportional to p, or in other words, m is equal to k times p, where k is the proportionality constant. देखो, ये मैंने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है कि गैस का कितना अमाउंट डिजॉल्व होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है बेटा? प्रेशर पे। यदि गैस का प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा, उतना ही ज्यादा अमाउंट गैस का क्या होगा? डिजॉल्व होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्लियर? जहां भी नहीं समझ आएगा हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ लेना। The solubility of gases depends on two important factors, temperature and pressure. Click each tab to learn more. ओके, टेम्परेचर देखते हैं। Solubility of gases in liquids decreases with an increase in the temperature. Let's see why this happens. An increase in temperature increases the kinetic energy of the gaseous particles in the solution. This results in fewer interparticle attractions. Particles become free to move randomly between the solution and vapor phase. This establishes an equilibrium. When we apply Le Chatelier's principle to this reversible reaction, we can say that the increase in temperature favors the reaction in the direction of absorption of heat. However, ये देखिए, यदि गैस है प्लस सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन बना रहा है एक्सोथर्मिक है, यदि ये एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ला साटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा? जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ वो आप जो अप्लाई कर रहे हो उसके इफेक्ट नलीफाई हो सके। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक आपको दिख रहा है, तो टेम्परेचर इसका इधर क्या होगा? इधर एंडोथर्मिक हो जाएगा उल्टा, यानी वो पीछे की तरफ भागेगा। दिस प्रोसेस गोइंग टू बी रिवर्स डायरेक्शन, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस गोइंग टू बी डिक्रीजेस। dissolving is an exothermic reaction. So, heat is given out and not absorbed. So, dissolving will not be favored. Therefore, solubility of the gas will decrease with an increase in the temperature. Let us look at another example. This graph shows the solubility of nitrogen in 100 grams of H2O or water. At 20 degrees, 1.5 milligram of nitrogen देखो ये is soluble डिक्रीज in हो रहा है, 100 grams टेम्परेचर water. से बढ़ रहा है, जब सॉल्युबिलिटी है When the temperature डिक्रीज हो रहा है। increases to 60 degrees, the solubility of nitrogen decreases to 1 milligram per 100 grams of water. ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। आप लोग को समझ में आ गया कि जनरली हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि गैस जब डिसॉल्व होता है वाटर में, यह प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक
आप लोगों को और भी स्लाइड्स मैंने पिछले लेक्चर में दिखाए थे ग्राफ्स कि कोई भी गैस हो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हमेशा हमेशा घटेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है पूरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर है सबको? आ जाते हैं प्रेशर पे। Solubility of gases also depends on pressure. The solubility of a gas in a liquid increases with an increase in pressure. Let us see how this happens. When the pressure increases, the equilibrium moves in the forward direction, following the Chatelier's principle. According to this principle, when the pressure increases, the reaction is favored in the direction of decrease in volume. So, on increasing the pressure, a greater number of gas molecules get dissolved in the liquid. Therefore, the solubility of a gas in a given solvent increases with an increase in pressure. In fact, this is why aerated drinks are kept at high pressure so that more gas is dissolved in the bottle. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? आप ये डायग्राम से जो एरिएटेड आप लोग ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोको कोला, उस समय टाइट पैक रहता है। टाइट पैक रहता है क्या, प्रेशर रिलीज होता है। जैसे आप उसके कैप्स को खोलते हो, प्रेशर रिलीज तुरंत आपको गैस बाहर जाने की साउंड सुनाई देती है, काफी तेज से प्रेशर बाहर निकलता है। आप लोग समरी Henry's पढ़ो। law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Solubility of gases in liquids decreases with an increase in the temperature. The solubility of a gas in a liquid increases with an increase in pressure. ठीक है, ये हेनरी लॉ आपको समझ में आ गया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सो m इक्वल टू kp, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मैंने इसके नोट्स से आप लोग को डिस्कस कर दिया है, फिर भी आप लोगों को नोट्स दिखा देते हैं, आप लोग सेटिस्फाइड हो कि नहीं। ये इसकी पीपीटी मैंने आप लोगों को क्लास में दिखाई थी, टाटा क्लास में ये डिस्कस किया था कि नहीं मैंने? इंट्रोडक्शन टू हैलो एल्केन्स। एनीवन रिप्लाई? No, sir. ठीक है, तो इसको स्किप कर दें, फिर आगे बढ़ें। चलो, आप लोग को वीडियो दिखा के फिर जहां पे स्लाइड समझाना हो स्लाइड समझा देंगे। ये देख लो। Solubility in solutions. A solution is a homogeneous mixture of particles such as ions, atoms, or molecules. It consists of a solute in a lesser amount and a solvent in a greater amount. The solute is dissolved in the solvent, which is the dissolving medium. Solubility is the maximum amount of solute dissolved by a given amount of solvent at a definite temperature. Therefore, the solubility of the given substances in a given solute is temperature dependent. Based on the dissolving capacity of the solvent, there are three types of solutions: unsaturated, saturated, and supersaturated. Unsaturated solution. Unsaturated solution contains less solute and completely dissolves in a given amount of solvent at a particular temperature. For example, if a solid crystal of the solute, such as a crystal of salt, is placed in a solvent such as water, it will decrease in size as it dissolves. The particles of the crystal disperse at a faster rate. Saturated solution. In a saturated solution, the solvent contains the maximum amount of solute at a particular temperature. When we keep adding the solute, it begins to dissolve. The particles of the crystal disperse slowly.
At some point, the solid solute will not dissolve in the water and some solute precipitates. Supersaturated solution. When the beaker is heated, the increase in temperature alters the solubility. At a higher temperature, a solvent can dissolve more solute than it can normally dissolve. The supersaturated solution contains the maximum amount of solute at a higher temperature. When more solute is added into the solution, crystals form. Summary: an unsaturated solution has a capacity to dissolve more solute. A saturated solution cannot dissolve any more solute. A supersaturated solution contains more solute than it can dissolve under normal conditions. ये आप लोग को समझ में आ गया? सैचुरेट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को। अनसैचुरेटेड जैसे आप समरी पे देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी फुल नहीं हुई है, ये और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फर्क है? तो अप्लाई करो। सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? सर सैचुरेटेड मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करता है और सुपर सैचुरेटेड और वे मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करता है। देखो सुपर सैचुरेटेड हुआ नहीं गलत बता दिए। सुपर वे सॉरी वे इंक्रीज करता है टेम्परेचर को ना। हाँ, मतलब ये है कि सैचुरेटेड जो है मोर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, और सुपर सैचुरेटेड क्या है? एट अ हायर टेम्परेचर हम उसको जबरदस्ती थोड़ा और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करा पाएंगे जो कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। और जब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा। मतलब जो एक्सेस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो एक्सेस सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है ड्यू टू हायर टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा? वापस से सॉलिडिफाइड हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो डिसोल्यूशन का अपोजिट प्रोसेस है। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है भाई, एक एक सब कुछ देखते हैं। हेनरी लॉ स्टेट, ये हेनरी लॉ के बारे में एक टेबल है, इसको समझाने की जरूरत है कि इसमें कुछ खास नहीं है। फार्मूला है P = KH C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मास है, और P क्या है? प्रेशर है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, M की जगह पे आप C रख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन। ये हेनरी लॉ है, इसमें कोई खास नहीं है। आगे बढ़ते सीधे दूसरे वीडियोस पे, यहाँ देखते हैं Henry's law. हेनरी लॉ को एक बार फिर से आप लोग देखते हैं। Henry's law helps to explain the relationship between the surrounding pressure and the solubility of gases when they are dissolved in liquids. The law was formulated by the English chemist William Henry in 1803. He showed that at a constant temperature, the amount of a given gas dissolved in a specific liquid with a specific volume will be directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. For his law, we know that as the pressure on the liquid increases, the solubility of gases dissolved in that liquid will also increase. In other words, the solubility of a gas dissolved by a liquid is proportional to the pressure of the gas upon the liquid. A common example of the Henry's law can be found in a soft drink. These beverages are a mixture of water and carbon dioxide added to them. Inside a closed bottle, there is carbon dioxide gas just above the drink. The gas will be at a pressure that is slightly higher than the atmospheric pressure. It is this pressure that allows the carbon dioxide to remain dissolved in the liquid. When you open the cap, the pressure inside the container will be released. Therefore, the pressure on the beverage will also decrease. Now that the pressure above the liquid has decreased,
the solubility of the carbon dioxide will drop, and some of the gas will bubble out of the liquid, giving it the fizz. If you leave the bottle opened for a long time, the carbon dioxide in the bottle will eventually reach equilibrium with the carbon dioxide in the air, leaving you with a flat, fizzless drink. The concentration of dissolved gas depends on the partial pressure of the gas. Under pressure, the gas molecules will collide with the surface of the liquid. If the partial pressure is increased, the number of collisions will also increase, and more gas will be dissolved in the liquid. Henry's law can be represented mathematically with an equation. At a constant temperature, P is equal to KHC, where P is the partial pressure of the liquid in which the gas is dissolved. C is the concentration of the liquid. And KH is the Henry's law constant that is dependent on the gas which is being dissolved. The law also shows us that as the temperature increases, the solubility of gases in liquids will decrease. In other words, if we were to take our open bottle of soda and set it in a bowl of warm water, carbon dioxide will be released much more quickly than if the bottles were left sitting at room temperature. Summary. The solubility of a specific gas in a specified liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. आप लोगों को हेनरी लॉ अच्छे से समझ में आ गया? Of the gas above the liquid. The solubility of a specific gas in a specific liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. ओवरऑल आपको हेनरी लॉ दो बार समझा दिया। हेनरी लॉ का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी गैस की प्रेशर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करेगा। इसी पे एक लॉ बन गया है जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस का क्या होगा? डिक्रीज करेगा हमेशा। क्लियर? ये हो गया। अब देखते हैं क्या है। आप लोग वन बाय वन टर्म का डिफिनेशन देख लो। फोर्स का डिफिनेशन, प्रेशर का डिफिनेशन क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। सिंपल आप क्लास 10th में पढ़ोगे फार्मूला, तो वही चीज है। टेम्परेचर क्या होता है भाई? ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर इन अ सैंपल ऑफ मैटर। कोई मैटर है, उसकी छोटे सैंपल में उसके मॉलिक्यूल्स की क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो डिसाइड करता है कि उसमें पास कितना टेम्परेचर है। अमित यादव बेटा वीडियो अपना ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ए स्टेट ऑफ रेस्ट आर बैलेंस ड्यू टू इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिट फोर्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक रेट से हो, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जनरली जितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी स्पीड से रिएक्टेंट अगेन बन जा रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो लिखा ना, ए स्टेट ऑफ रेस्ट आर बैलेंस ड्यू टू इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स मतलब क्या? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इक्वल एक्शन हो रहा है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या हुआ? concentration of reactant and concentration of product does not change with the time, but reaction is going to be happen continuously. So this type of equilibrium is known as dynamic equilibrium. Partial pressure क्या होता है भाई? The pressure exerted by one of the gases in mixture of gases. ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर है, 4-5 गैसेस का मिक्सचर है। इसी एक गैस का उस टोटल प्रेशर में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया, जो कि उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और जितने भी मोल फ्रैक्शन है, तो मैंने बताया था सभी मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा? 1 होगा। सॉल्युबिलिटी आ जाओ। द एक्सटेंट टू विच अ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। किस हद तक, किस एक्सटेंट तक एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। अब आप लोगों को क्विज का रिप्लाई करना है। क्विज स्टार्ट कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, what is the effect of pressure on solubility of solid in liquid? इसका आंसर दो भाई। Anyone reply?
प्रतीक, आवाज आ रही है सबको ना? अमित, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, इसका आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मैंने बताया था प्रेशर का सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर, इंक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर, डिक्रीज भी नहीं होगा। डिक्रीज इनसिग्निफिकेंटली विद प्रेशर या इंक्रीज इनसिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। What is the effect of pressure on solubility of a solid in a liquid? अच्छा, इसका होगा इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। सबमिट करते हैं। गलत, इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इनसिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। What is the effect of pressure on solubility of a solid in liquid? देखो, इससे पहले एक ग्राफ आप लोगों को दिखाया गया होगा कि सॉलिड के केस में जो लाइन क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। दिखाई दे कि नहीं स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ? तो उसमें ये क्या है कि उसमें जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई खास चेंजेस नहीं आता है सॉल्युबिलिटी में, लेकिन यहाँ लिखा इंक्रीज इनसिग्निफिकेंटली, मतलब कि डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लग रहा है। Which of the following is fairly soluble in water? बताओ इसका आंसर दो, बहुत आसान है। कौन इसका आंसर देगा? वाटर कैसा है सोचो, लाइक डिजॉल्व इन लाइक्स होता है ना, तो वाटर किस टाइप का सॉल्वेंट है? पोलर है। तो किस टाइप का मॉलिक्यूल? सोडियम क्लोराइड। हाँ, दैट्स द करेक्ट आंसर, गुड। क्योंकि लाइक थैंक यू डिजॉल्व सर। लाइक्स, ओके। Which of the following factor affect the solubility of a solid or gas in the given liquid? Which of the following factor affect the solubility of a solid or gas in the given liquid? कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई सॉल्युबिलिटी को? देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो करना ही चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि और सब तो घुमाने के लिए आंसर दिया हुआ है। टेम्परेचर इज द राइट आंसर, करेक्ट। Which law gives the relationship between pressure and solubility of gas in a liquid? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ होगा, यही प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड में रिलेशनशिप बताता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ये लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is an application of हेनरी लॉ? ये तो आसान आंसर दे सकते हो, कोई भी आंसर दो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हाँ, आप लोग जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो वो प्रेशर की वजह से डिसॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें। ये हेनरी लॉ का वाला सेक्शन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब लास्ट 8 मिनट हमारे पास है, ऐसा करते हैं एक वीडियो हम लोग देख सकते हैं लास्ट में, पेपर प्रेशर। यही रिवाइज कर दीजिए हेनरी लॉ को फिर से 8 मिनट। न्यू आगे बढ़े कि हेनरी लॉ को समराइज कर दे? वैसे हेनरी लॉ तो समराइज तो कई बार कर चुके हैं। सर समराइज कर दीजिए, कल से न्यू स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 मिनट लगे समराइज करने में। हेनरी लॉ कहना क्या चाहता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस है उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा, यानी कितना गैस डिसॉल्व होगा किसी लिक्विड में वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस का रिलेशनशिप क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनशिप होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m के जगह पे आप कई टर्म रख सकते हो। m के जगह पे आप कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हो, मतलब मोल पर लीटर में रख सकते हो वॉल्यूम, या मोल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यही कहना चाहता है, यानी हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे राउल्स लॉ, उसमें ये बात ज्यादा क्लियर होगा। उसमें राउल्स लॉ में क्या है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की लगभग बातें हैं, वेपर प्रेशर की बातें हैं, तो ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को और कोई अलग से क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, ये देख लेते हैं। 6 मिनट बचा, 6 मिनट का वीडियो होगा। Vapor pressure of liquids.
ठीक. Take two round-bottomed flasks. Flask A and a open container with a volatile. Sir, हाँ प्रतीक कुछ पूछ रहे हैं बेटा? I want to ask, हाँ पूछो. sir, in supersaturated solution, temperature is also a factor or not? देखो सुपर सैचुरेशन की स्टेट को पाने के लिए हमको टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ता है. सुपर नॉर्मल उसी टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं काम करेगा. नहीं, उसी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम फॉर्म करेंगे तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे. एट रूम टेम्परेचर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में फिक्स अमाउंट के, वो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. सुपर क्या है? जो सैचुरेटेड से भी ज्यादा हो और इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब इसके लिए हम रूम टेम्परेचर से ज्यादा हाई टेम्परेचर आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे उसको हीट करके. सुपर सैचुरेटेड हमेशा और सर हाँ उसमें जो सॉल्यूट था वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा था, उसका क्या मतलब होगा? देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो जब तक हायर टेम्परेचर अपना मेंटेन किया हुआ है तब तक के लिए वो क्या है, डिसॉल्व किया हुआ है. लेकिन आप उसको हायर टेम्परेचर पर अधिक टाइम के लिए तो रख नहीं सकते. उसको छोड़ोगे कूलिंग होने के लिए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो प्रोसेस क्या होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो प्रोसेस रिवर्स होने लगेगा. जो हायर टेम्परेचर की वजह से डिसॉल्व थे सॉल्यूट, वो रिवर्स होकर के क्या होंगे, क्रिस्टल बनाने लगेंगे, सॉलिडिफाइड होने लगेंगे. डिसोल्यूशन का अपोजिट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, उसको अब रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे हाई टेम्परेचर से कूलिंग होने के लिए. उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा डिसॉल्व है वो आपस से क्रिस्टल बना लेंगे, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ओके सर. समझ में आ गया ना? यस सर. अब इसको चालू करें वेपर प्रेशर के बारे में. थैंक यू सर. ओके वेलकम. The molecules of the liquid are in random motion. On gaining energy by interparticle collisions, the molecules leave the surface and escape from the container by the process of evaporation. Flask B is a closed container with a volatile solvent. The molecules are in random motion. The movement causes some molecules above the liquid surface in the vapor phase to lose energy. They convert back to the liquid phase due to the process of condensation. After some time, equilibrium is established between the two phases of the substances. That is, the rate of condensation is equal to the rate of evaporation. The pressure exerted by the gaseous vapor phase above the surface of the liquid in equilibrium with the liquid phase at a given temperature is known as vapor pressure. देखो ये वेपर प्रेशर का डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था. Vapor pressure. ठीक है, ये देखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस वेपर फेज एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ये मैंने आपको क्लास 11th में भी जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा तो वहां भी वेपर प्रेशर का टर्म आया था. मैंने बताया था वहां भी कि जब लिक्विड को हम किसी वैक्यूम में पैक करेंगे या किसी भी जहां बर्तन में पैक करेंगे वहां पे क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे. वेपराइजेशन इवेपोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस फिनोमेना एंड बॉइलिंग इज डिफरेंट थिंग्स. मैंने समझाया था कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग अलग अलग है. यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिली स्पेस में क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा. ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा. ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव न हो. जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस वक्त जो वॉल पे कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलेंगे. Clear? Liquid phase at a given temperature is known as vapor pressure. Now, let us learn how to determine the vapor pressure of liquid solutions. Let's take a binary solution of volatile liquids A and B in a closed container. Since they are volatile, both the liquids in the solution undergo evaporation. At the same time, some of the molecules over the solution from the vapor phase condense and change to the liquid phase. Evaporation and condensation continue in opposite directions until equilibrium is established between the vapor and liquid phases. At equilibrium, the components of both the liquids A and B of the solution
exert a vapor pressure over the surface of the liquid, which is known as partial pressure. Partial pressure can be expressed in terms of their respective mole fraction. Francois-Marie Roux gave a quantitative relationship between partial pressure and the mole fraction. This is termed as Roux' law. Roux' law states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole. Roux' law for the binary solution of volatile liquids A and B is as follows. The partial vapor pressure for component A is the product of the vapor pressure of the pure component A and the mole fraction of A. The partial vapor pressure of component B is the product of the vapor pressure of the pure component B and the mole fraction B. The total pressure for this binary solution can be obtained by Dalton's law of partial pressure, which states that the total pressure P exerted over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the components of the solution. Total vapor pressure is equal to the sum of the partial vapor pressure of components A and B. Applying Roux' law, the total vapor pressure of the solution will be, since the mole fraction of the components of a solution is always equal to 1, total pressure can also be expressed in terms of mole fraction of any one component as follows. Now, let's learn the graphical interpretation of Roux' law for liquid-liquid solutions. देखो आप लोगों के पास टाइम अप हो चुका है, आप लोग ये फार्मूले देख के समझ रहे हो कि नहीं राउल्स लॉ क्या करना चाहते हैं। राउल्स लॉ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या है कि जो उसका प्रेशर है गैस का